की दोपहर को करीब 2:30 बजे दामोदर नदी के मथुरा चंडी घाट में नहाने के दौरान डूबे एक 15 वर्षीय किशोर शुभोदास तथा 21 वर्षीय युवक सौरभ नंदी का शव पुलिस विभाग के सिविल डिफेंस की टीम के गोताखोरों ने शुक्रवार प्रातः खोज कर निकाला। सबसे पहले शुभोदास का शव मथुरा चंडी घाट के समीप से मिला, जबकि सौरभ नंदी का शव दामोदर नदी ब्रिज के नीचे पाया गया। दोनों का शव निकालते ही गम का माहौल व्याप्त हो गया। वहीं लोगों ने इस बात को लेकर आक्रोश दिखाया कि बालू कारोबारी द्वारा अवैज्ञानिक तरीके से नदी में मशीन लगाकर बालू निकालने के कारण नदी में बड़े बड़े गड्ढे बन जा रहे हैं। नदी में नहाने के दौरान उस गड्ढे की चपेट में आने से वह पानी के ऊपर उठ नहीं पाते हैं, फलस्वरूप डूबकर मृत्यु हो जाती है। इसके पूर्व भी लगातार ऐसी घटनाएं घट चुकी है। मारे गए शुभोदास एवं सौरभ नंदी दोनों पश्चिम बर्धमान जिला के रानीगंज के न्यू एगरा गांव के रहने वाले थे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार वे दामोदर नदी पर मथुरा चंडी घाट पर गुरुवार दोपहर साइकिल लेकर आए थे। नदी के किनारे उनके कपड़े, चप्पल एवं गमछा पाए गए थे। उसके बाद उन दोनों के लापता होने की खबर पूरे इलाके में फैल गई। घटना की खबर मिलते ही रानीगंज थाना व मीजा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और शुक्रवार प्रातः इन दोनों के शवों को निकालने के बाद इलाके के लोग और मृतक के परिजनों का फूट फूट कर रोने लगे। मेजा थाना की पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। গতকালকে যে দুটো ছেলে এখানে স্নান করতেছিল দুপুরবেলাতে, তারা এখানে পরে খবর হয় যে ওরা এখানে ডুবে গেছে এবং কাল থেকে প্রশাসনের এবং পুলিশের ব্যক্তিরা এবং আমাদের সঙ্গে গ্রামবাসী, মন্দির কমিটি সবাই খুব সুন্দরভাবে সহযোগিতা করেছে বডি দুটো ওঠাবার জন্য। কিন্তু কাল রাত্রে কিছু আর হয়নি। আজকে সকালে বডি দুটো তোলা হয়েছে। একটা আমরা ব্রিজের কাছাকাছি পাওয়া গেছে এবং একটা যেখানে স্নান করতে নেমেছিল বলে ধারণা সেখানেই পাওয়া গেছে একটা বডি। এখন এইটাই যে বাড়ির লোকরা তাদের ছেলেদের মৃতদেহগুলো দেখতে পাবে। হ্যাঁ, আর কি করা যাবে, আমরা চাইছি যে এখানে মন্দিরের কমিটির পক্ষ থেকে কিছু সাবধান বানিয়ে এখানে সাবধানতা অবলম্বন করতে। এইটার জন্য আমরা পুলিশকে এবং আমরা প্রধানকে চিঠি করব যে আপনারা একটা ওয়ার্নিং বোর্ড দেন, যেটা একটা ডেঞ্জার জোন হিসাব। আর কমিটির পক্ষ থেকেও আমরা কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছি কালকে, যেগুলো আগামী দিনে কার্যকরী করব। বারবার এই ধরনের ঘটনা এই জায়গাতে, হ্যাঁ, সেটা তো খুব দুঃখজনক। বারবার ঘটনা ঘটছে। এবারে তারা এমন সময় চলে আসছে এবং তাতে সবথেকে বড় ব্যাপার যে পরিবারের লোকদের একটা সাবধান হওয়া উচিত তাদের সন্তানদের ব্যাপারে। আর যারা সাঁতার জানে না, তারপর নদী একটা সবসময় ভয়ঙ্কর। হ্যাঁ, ওইসব জায়গাতে বালি তোলার জন্য বড় বড় গভীর খাদ হয়ে যাচ্ছে জলে তোলাতে, যাতে বোঝা যাচ্ছে না। তারা হয়তো খুব সাবধান হয়েই নামছে, কিন্তু এমনভাবে হয়তো তারা গভীর জলে একবারে চলে যাচ্ছে, সেটাতে মৃত্যুর আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে এবং মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে বারবার। কি নাম আপনার? আমার নাম গৌতম চৌধুরী, আমি মথুরা চন্ডী কমিটির সম্পাদক। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के मेजा डाकघर द्वारा सटीक ढंग से परिसेवा न प्रदान करने का आरोप लगाते हुए डाकघर के सामने स्थानीय ग्राहकों ने गुस्सा जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया। ग्राहकों ने आरोप लगाया है कि डाकघर के कर्मी सही समय पर कभी नहीं ऑफिस आते, साथ ही सही तरीके से तो सहयोग बिल्कुल नहीं करते एवं यहाँ आने वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। डाकघर के कर्मी अपने कार्यकाल में गलत ढंग से परिसेवा देते हैं, साथ ही वे लोग अपने अंतराल समय से बिल्कुल नहीं आते, जिसके कारण ग्राहकों को सुबह से ही लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं। और आज सुबह डाकघर खुलने के साथ ही यहाँ आने वाले ग्राहकों ने विक्षोभ शुरू कर दिया। वहीं घटनास्थल पर मेजा थाना की पुलिस पहुंचकर परिस्थिति को शांत कराया। বলুন। মেজা পোস্ট অফিস দীর্ঘদিন ধরে মানুষকে হয়রানি করছে। নিয়মিত কোনো কর্মী আসে না। হ্যাঁ, 11টা 11:30 পর কর্মীরা আসে, তারপর নানা রকম অজুহাত দেয়। কোনোদিন বলে নেই না নেই, হ্যাঁ, কোনোদিন বলছে হবে না, তাছাড়া মানুষকে নাজেহাল করে। আমরা তার প্রতিবাদে আজকে একটা বিক্ষোভ মিছিল করেছিলাম, বিক্ষোভ সমাবেশ করেছিলাম। হ্যাঁ, এখানে রেভিনিউ স্ট্যাম্প থাকে না, সেভিংস অ্যাকাউন্ট হয় না, তারপর কোনো দিন তো লিঙ্ক থাকে না।
এমনকি অনিয়মিতভাবে কর্মীরা আসা যাওয়া করে, প্রতিবাদ করলে তারা তাদেরকে হেনস্থা করা হয়। হ্যাঁ, ব্যবহার ভালো করে না তারা আপনারা বিষয়টা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে হ্যাঁ জানিয়েছেন? জানিয়েছি, কাল বিডিও সাহেবকে জানিয়েছিলাম, কাল লিখিত কমপ্লেন করেছেন বিডিও সাহেবকে। আপনার নাম? আমার নাম দীপক ব্যানার্জি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। हाल ही में नुपुर शर्मा नामक एक भाजपा नेत्री ने हजरत मोहम्मद के बारे में कुछ विवादित टिप्पणी की थी, जिससे मुस्लिम संप्रदाय के लोग काफी नाराज हुए थे। वहीं भाजपा ने नुपुर शर्मा को प्रवक्ता पद से हटाने के साथ ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी 6 सालों के लिए बर्खास्त कर दिया था। इसके बावजूद उन लोगों में गुस्सा है, जिसके तहत रानीगंज के 91 नंबर वार्ड से एक शांति जुलूस निकालकर नुपुर शर्मा का गिरफ्तारी की मांग की गई। जी, आज रानीगंज, गिरजापाड़ा और चरबी मोहल्ला, रहमत नगर 91 नंबर वार्ड के तमाम तर बसिंदगान मुसलमान और यहाँ के अतराफ़ के तमाम लोग और रानीगंज के और भी मोहल्ले के रहने वाले सबों ने मिलकर हम सबों ने आज पुरअमन एहतजाज का, पीसफुल प्रोटेस्ट का एहतमाम किया है, जो कि जुमा के नमाज के बाद किया गया है। और ये एहतजाज जो कि हमारे हिंदुस्तान में अनापसंद कुछ लोग हैं, उनमें से एक नाम है नुपुर शर्मा, जिसने कि हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में जिसने गुस्ताखी की है, उस गुस्ताखी के एहतजाज में हमने ये एहतजाज किया है। और हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री और हमारे शहर वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री, तमाम तर सियासी जो लीडर हैं, उनसे हम लोगों की गुजारिश है कि ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मसला, ये हमारे ईमान का मसला है और हम मुसलमान चाहते हैं कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि नुपुर शर्मा को अरेस्ट किया जाए और उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। प्रोटेस्ट का रूट हम लोगों का 91 नंबर वार्ड ही में गिरजा मोहल्ला मस्जिद और रहमत नगर चांद मोहल्ला होते हुए गिरजापाड़ा मोड़ में यहाँ पर एहतजाज किया गया रुक करके, और पुरअमन कॉरपोरेशन को कोऑपरेट के साथ में हम लोगों ने ये एहतजाज अंजाम दिया। और हमारा मकसद यही है कि सरकार इस एहतजाज को हमारा न्यूज़ और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाए और रानीगंज के लोगों के भी दिल में ये ठेस लगा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये हमारा ईमान का नाजुक मसला है, जिस पे सरकार अहम से अहम कदम उठाए, ताकि आने वाले वक्त में किसी भी ऐसे अनापसंद लोग जो कि किसी भी मजहब के साथ अगर कोई गलत टिप्पणी करते हैं तो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके लिए सज़ा का प्रावधान लाया जाए, ताकि आने वाले वक्त में किसी को भी हिम्मत या ज़रूरत ना हो जे कि किसी के मजहब के ख़िलाफ़ वो अनाप शनाप आकर मीडिया या फिर किसी ऐसे जगह पर आकर कहे जिससे हमारे मुल्क और हमारे शहर के अमन व अमान को ख़तरा। हमारा नाम हाफिज़ मोहम्मद हसनैन रज़ा और ये जुलूस हमारे मस्जिद के इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना अरशदुल कादरी के क़यादत में मुनक्किद की गई। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। बांकुड़ा के सुरेखा परिवार की तरफ से कम उम्र में विधवा हुई महिलाओं को निशुल्क सिलाई मशीन देने का जो बीड़ा उठाया है वह आज भी जारी है। परिवार की तरफ से गायत्री देवी सुरेखा स्मृति में विधवाओं को सिलाई मशीन देने का प्रावधान रखा गया है। शुक्रवार को एक समारोह के मध्य सुरेखा परिवार के प्रयास एवं बांकुड़ा अनुशीलन समिति के सहयोग से विधवाओं को प्रशिक्षण के बाद सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी। प्रत्येक वर्ष आर्थिक तंगी झेल रही कम उम्र की 5 विधवाओं को यह सुविधा दी जाती है। मौके पर गायत्री देवी सुरेखा के बेटे एवं अनुशीलन समिति के अध्यक्ष राजकुमार सुरेखा का कहना है कि विगत 3 वर्षों से मां की स्मृति में कम उम्र के विधवा महिलाओं को स्वनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीन प्रदान की जाती है।
वहीं इस बारे में बांकुड़ा नगर पालिका के 7 नंबर वार्ड के पार्षद दिलीप अग्रवाल का कहना है कि सुरेखा परिवार के प्रयास एवं अनुशीलन समिति के सहयोग से विधवाओं को सिलाई मशीन देने की सामाजिक कार्य की सराहना करते हैं। समाज के ऐसे लोग अगर आगे नहीं आए तो ऐसी महिलाओं को स्वनिर्भर बनाना मुश्किल होगा। इसके लिए परिवार की भूमिका प्रशंसनीय है। আমি যদি মানে ভবিষ্যতে নিজের জীবনে দাঁড়াতে পারি আর আমি আমার সমস্ত দুটি মেয়ে আমার একটাই লক্ষ্য দুটো মেয়েকে মানে বড় করা। আমি চাই দু মেয়েকে খুবই ভালোভাবে মানুষ করতে, সেই জন্য আমার জীবনে যতটা মানে আমি যতটা পারবো আমি সেই দুটি মেয়েকে আমি জীবন দিয়ে চাই মানুষ করতে। আমি এখানে এই সাহায্য পেয়ে যেমন সত্যিই মন্দির যেমন দাঁড়াতে পারি আর দুটি মেয়েকে মানুষ করতে। আজকে সুরেখা পরিবার যে উদ্যোগটা নিয়েছে আর অনুশীলন সমিতি তার কাছে আছে, সেটা কি কতটা আপনি সাধুবাদ জানাচ্ছেন? না, আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রায় 3 বছর ধরে সুরেখা পরিবার, অনুশীলন সমিতির সভাপতি রাজীব সুরেখান, তাদের পরিবার রবিদাও আছে, অনুশীলন সমিতির সহযোগিতা যারা কম বয়সে বিধবা হয়েছে সেই মহিলাদেরকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য সেলাই মেশিন প্রদান করা হচ্ছে। প্রথমে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর তাদের হাতে সেগুলো তুলে দেওয়া হয়। আমরা জানি যে আজকে বর্তমান পরিস্থিতিতে মহিলাদিকে যদি আমরা বিশেষ করে বিধবা মহিলাদিকে যদি আমরা স্বনির্ভর করে তুলতে পারি তাহলে তাদের পরিবার ছেলে মেয়েদিকে তারা শিক্ষার থেকে আরম্ভ করে তাদেরকে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে। সরকার বিভিন্ন রকম সহযোগিতা করছে, ঠিক আছে, কিন্তু যদি এরকম বিভিন্ন মানুষ সমাজে আমরা যারা বসবাস করি আমরা যদি এগিয়ে না আসি তাহলে কিন্তু এদিকে নিজেদের পায়ে দাঁড় করানোর যে একটা চেষ্টা সেটা কখনো সফল হতে পারে না। তো আজকে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা জানি যে বিভিন্ন রকম কাপড়ের তৈরি বিভিন্ন রকম জিনিস আজকে কিন্তু মানুষের ব্যবহার খুব প্রয়োজন। একটা সময় ছিল যে তখন কাপড়ের জিনিস ব্যবহার হতো, আমরা জানি যে বাজার করতে গেলে যে ব্যাগ সেটা একসময় কাপড় বা এই পাট চটের ব্যাগ ব্যবহার হতো, কিন্তু বর্তমানে আমরা কি দেখি যত প্রযুক্তি উন্নত হচ্ছে তত আমরা প্লাস্টিকের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তার ফলে আমাদের বায়ু দূষণ হচ্ছে, পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আরম্ভ করে রাজ্য সরকার তার জন্য পরিবেশকে বাঁচাবার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে হবে। এবং এটা একটা খুব সুবর্ণ সুযোগ মহিলাদেরকে যে তারা যদি নিজেরা প্রশিক্ষণ নিয়ে যদি কাপড়ের ব্যাগ তৈরি করতে পারে তাহলে কিন্তু বর্তমানে তারা এটা বাজার একটা বিশাল মার্কেট তৈরি হবে। ক্যারি ব্যাগটা যদি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায় তো তার জন্য একটা খুব ভালো উদ্যোগ। এবং আমি আবার সুরেখা পরিবারকে ধন্যবাদ জানাই যে এত সুন্দর একটা তারা সমাজ সেবামূলক কাজ করছেন। এবং অনুশীলন সমিতি শুধু এই আজকে যে সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে তা নয়, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রকম সমাজ সেবামূলক কাজ করে আসছেন। পরিবেশকে দূষণমুক্ত করার জন্য কখনো করোনার সময় মানুষকে অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া, কখনো ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, কখনো আবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, বিভিন্ন রকম। তো অনুশীলন সমিতি এগিয়ে চলুক। আমি বিগত দিনেও অনুশীলন সমিতির পাশে ছিলাম, আগামী দিনেও যে কোনো ভালো কাজে আমি তাদের পাশে থাকবো এই প্রতিশ্রুতি আজকে দিচ্ছে। এবং আগামী দিনে আরেকটা খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছে সুরেখা পরিবার অনুশীলন সমিতিকে সঙ্গে নিয়ে। উপরে দ্বিতল যেটা ওদের প্রায় তৈরি হয়ে গেছে, সেই দ্বিতলে প্রায় 20 থেকে 25 জন দুস্থ মেধাवी ছাত্র যারা। आज आप लोग सिलाई मशीन को प्रशिक्षण देंगे, उसके बाद मशीन लेंगे, किस लिए? लोग सिलाई मशीन का जो प्रोग्राम किया है वो एक्चुअल में क्या है कि हमारा माता गायत्री देवी के सुरेखा की स्मृति में किया गया है। वो जो विधवा महिला है, कम उम्र में जो विधवा हो गई है 25 से 50 साल के बीच में, उनको स्वनिर्भर होने के लिए अपना काम, अपना परिवार, अपना बच्चा को पालने के लिए एक प्रशिक्षण शिविर सिलाई मशीन का दिया जा रहा है। और साथ ही साथ उनको 3 महीने का प्रशिक्षण शिविर देने के बाद में हम लोग उसको सिलाई मशीन भी प्रदान करेंगे। तो सिलाई मशीन से वो अपना जो गुजारा करेगी और ज़रूरत पड़ने पर उन लोग को काम भी दिया जाएगा। ये हम लोग का। कितने साल से आप लोग दे रहे हैं इसे? 3 साल से हम लोग दे रहे हैं। आपका नाम? राजकुमार सिंह। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
उत्कर्ष बंगला परियोजना को लागू करने हेतु दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र के मालिकों को लेकर आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के ऑडिटोरियम हॉल में शुक्रवार को पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी एस अरुण प्रसाद, महकमा शासक शेखर कुमार चौधरी, दुर्गापुर नगर निगम के तत्व सांस्कृतिक दफ्तर के अधिकारी सहित आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण मौजूद थे। फैक्ट्री के मालिकों के सामने पेश होकर विस्तार से चर्चा की गई, कैसे उद्योगपति बेरोजगार युवकों को अपने कारखाने में उचित प्रशिक्षण के साथ रोजगार प्रदान कर सकते हैं। फैक्ट्री के मालिकों ने अपने विचार व्यक्त किए। ज्ञात हुआ है कि इस बैठक में राज्य सरकार की उत्कर्ष बंगला परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य के अन्य हिस्सों सहित दुर्गापुर औद्योगिक कारखानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर प्रशिक्षण युवकों को देने का उपाय किया जाएगा। अच्छा, किस किस मुद्दे पर हुआ सर आज? उत्कर्ष क्या क्या आलोचना हुआ सर, थोड़ा बताइए। उत्कर्ष बांगलाते जो स्किलिंग এর কাজগুলো হয় সেটার জন্য আমরা ইন্ডাস্ট্রির সাথে আলোচনা করছি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बीते विधानसभा चुनाव के परिणाम के पश्चात हुई हिंसा के मामले में जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा शुक्रवार को बीरभूम के नानूर के ब्लॉक अध्यक्ष सुब्रत भट्टाचार्य एवं मयूरेश्वर 2 नंबर पंचायत समिति अध्यक्ष जटिल मंडल को तलब किया गया था। दोनों ही तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल के करीबी बताए जाते हैं। पूछताछ के पश्चात तृणमूल नेता जटिल मंडल ने बताया कि अनुब्रत मंडल की कॉल लिस्ट देखकर ही मुझे बुलाया गया है। सीबीआई ने मुझसे अनुब्रत मंडल को किस कारण से फोन किया गया था इस संबंध में पूछताछ की है, जिसका जवाब मैंने उन्हें दे दिया है। मालूम हो कि पिछले सप्ताह भर के भीतर बीरभूम जिला के करीब आधा दर्जन से अधिक तृणमूल नेताओं को सीबीआई ने दुर्गापुर के एनआईटी शिक्षण संस्थान में अपने अस्थायी सीबीआई कैंप में तलब कर चुकी है, जिसमें कई विधायक एवं ब्लॉक अध्यक्ष शामिल है। কি বললো, কি জিজ্ঞাসাবাদ করলো? জিজ্ঞাসা করলো যে তৃণমূলকে চেনেন? আমরা দল করি তখন নিশ্চয়ই চিনি। ঠিক আছে, দল করি তখন নিশ্চয়ই চিনি। ওর সঙ্গে সম্পর্ক কেমন আছে? আমরা সম্পর্ক ভালো নাই খারাপও নাই। যেদিন দল করে মিটিং ডাকে সেদিন আসি, সেদিনে যা বলে শুনি। কি বলে মিটিংয়ে দলের কথা বলে যে দলের এই করতে হবে, সম্মেলন করতে হবে, কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি এসব। মানে ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ? ওই সেরকম তো কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। মানে আপনাকে কি কল লিস্ট ধরে জিজ্ঞেস করলো? কল লিস্ট ধরে জিজ্ঞাসা করলো। আচ্ছা, আপনাকে আপনি কেন এই তারিখে এই সময়ে টেলিফোন করেছিলেন? কাকে করেছিলেন? অনুব্রত মণ্ডলকে। আর 2 তারিখে কেন করেছিলেন? আমরা 2 তারিখে করেছিলাম, আমাদের প্রার্থী তখন 3টা বুথে হেরে যাচ্ছিল, সেই সময় সেই জন্য করেছিলাম। তারপরে আবার ভোটে জিতে যাই, সেটা আবার করেছিলাম। এছাড়া অন্য কোনো প্রশ্ন ছিল? আর একটা প্রশ্ন করলো যে তাহলে আপনি 8 তারিখে কি জন্য করেছিলেন? কারণ 8 তারিখে বিজেপির পার্টির অফিস, আমাদের পার্টি অফিস ভাঙচুর করে দিয়েছিল, কাছে ঢেলিং ভেঙে দিয়েছিল, তার জন্য করেছিলেন। এ বলবে সামনে। কি বললো তারপর শেষে? আবার বললো আবার প্রয়োজন হলে একবার কল করবো, আসবেন। আর কিছু কি মনে করছেন, এটা কি কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে দিয়ে কি কোনো রকম এটা ভয় দেখানো ছাড়া কিছু সামনে পঞ্চায়েত ভোট বলে? হ্যাঁ, এইগুলো আবার কি প্রশ্ন? কিসের জন্য ভয় দেখাচ্ছে কি জানি, যাদের কাস্টমারের সঙ্গে যোগাযোগ না। বলছি পঞ্চায়েত ভোটের জন্য কি? অবশ্যই। কিসের জন্য? যোগাযোগ যেন না থাকে, বিচ্ছিন্ন থাকা নেতাদের সাথে। মানে এটা কি মনে হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে দিয়ে আপনাদের ভয় দেখানো হচ্ছে? সেটা আমি বলতে পারবো। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जामुड़िया ट्रैफिक गार्ड की ओर से जामुड़िया ट्रैफिक कार्यालय में शुक्रवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर एक नाट्य रूपांतरण कर सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें 4 चक्का वाहन चलाने के समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, शराब पीकर वाहन ना चलाए, सड़क पार करते समय सिग्नल देखकर सड़क पार करें और 2 चक्का वाहन चलाते समय हेलमेट पहने, मोबाइल फोन का व्यवहार ना करें। वहां आए सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह और पौधा देकर सम्मानित किया गया।
वहीं गरीब बच्चों के भविष्य को देखते हुए उसे बेहतर शिक्षा के लिए एक कोचिंग सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। दूसरी ओर रक्तदान शिविर में 50 लीटर रक्त का संग्रह किया गया। यह रक्त संग्रह आसनसोल जिला अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा किया गया था। रक्तदान शिविर के मौके पर आईपीएस डीसीपी ट्रैफिक आनंद राय ने कहा कि रक्त की कमी के कारण बहुत लोगों का जीवन चला जाता है। रक्त कोई कारखाने में उत्पन्न नहीं होता। आज दिए गए इस रक्त से किसी के जीवन को बचाया जा सकता है और आने वाले समय में रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मौके पर एसीपी ट्रैफिक प्रदीप मंडल, सीआई सुशांतो चैटर्जी, थाना प्रभारी सिद्धार्थ साहा, ट्रैफिक ओसी अर्णव मंडल, समाज सेवी साधन राय, जयप्रकाश डोकानिया, महेश कुमार सावरिया आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। আমরা আজকে এসেছি তো বড় লরি বাইক সব কিছুই কিন্তু বাড়ছে, কিন্তু আমরা সবাই তো বাইক চালাই, গাড়ি চালাই, কিন্তু বলুন তো নিয়ম মেনে চলেন না? এই দেখো এইখানকার যে ফেয়ার রয়েছে না, जामोड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाने को लेकर आसनसोल नगर निगम के जामोड़िया बोरो 1 की ओर से शुक्रवार को जामोड़िया थाना मोड़ बस स्टैंड से राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार हाथों में बैनर लेकर और माइकिंग कर एक जागरूकता रैली निकाली गई। यह जागरूकता रैली जामुड़िया बाजार, बाटा मोड़, सिनेमा मोड़, पेट्रोल पंप इलाके की परिक्रमा की। इस रैली को लेकर जामुड़िया बोरो 1 के इंजीनियर कौशिक सेन गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार इलाके को प्रदूषण मुक्त करने के लिए और वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए सभी को इस जागरूकता रैली के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आगामी 1 जुलाई 2022 से इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा और जो भी दुकानदार सामग्री देने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे उस पर 500 रुपए का जुर्माना एवं खरीदने वाले के ऊपर 50 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। जुर्माना नहीं देने वाले लोगों के ऊपर होगी कानूनी कार्रवाई। सामग्री ले जाने के लिए कपड़े के बने थैले का इस्तेमाल करें। यह जागरूक रैली अभी से शुरू होकर आगे भी कुछ दिनों तक जारी रहेगी। मौके पर निर्मल मंडल, शौकत दे, तारक राय, कलीम शेख, विजय गुप्ता आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। रैली बेरोচ্ছে সেই র‍্যালিতে প্লাস্টিক আর থার্মোকল জাতীয় জিনিস যাতে বর্জন করা যায় বাজারে এবং বিভিন্ন জায়গায় যেখানে বিক্রি হয় সেখানে সচেতনতা একটা তৈরি করার জন্য এই র‍্যালি করা হয়। মানুষের মধ্যে এবং যারা দোকানদার আছে যারা এইসব বিক্রি করছে সেগুলো যাতে পলিউশনের হাত থেকে আমাদের পরিবেশকে বাঁচানো যায় তার একটা যারা ক্রেতার ক্ষেত্রে 500 টাকা আর ক্রেতার ক্ষেত্রে 50 টাকা আর বিক্রেতার ক্ষেত্রে 500 টাকা করে জরিমানা হবে। প্রত্যেকবারই জরিমানা হবে। এর আগেও তো একবার হয়ে যা আমরা এই সচেতনতা তৈরি করার চেষ্টা করছি এবং এবার আমাদের যেটা প্রোগ্রাম আছে সেটা প্রায় 1 মাস ধরে চলবে। বিভিন্ন ইয়ের সঙ্গে বিভিন্ন ফোরামে এটা চলবে। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম কৌশিক সেন। কী পরিচয় আপনার? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, জামুড়িয়া बोरो, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।